Greetings, class. Today we will be discussing about practical number 26 for class 10. And what we have to do in this practical is we have to open the term 1 result sheet we have created in practical number 25. So, what we are going to do is go to our folder, and I've already made a copy of it. So, you already know how to make a copy. Just right click it, copy it, and then paste it over here. You'll get a similar sheet. So let me delete it and just tell you from the scratch. So copy it and then paste it over here. Here you will get a sheet with the name copy. So we're going to replace it by the name of practical 26. Hit enter and you will get a new brand new sheet over there. Now what you have to do is when you'll open that, you will see that these are the pie charts you have made, and this is the sheet we have worked on. So the next step we are required to do is filter the data to display highest 3 mark scores. So in term one result, what we have to do is we have to filter this data out, and we have to find the top 3 scores in the subjects. So what we are going to do is we are going in home tab, and we are going to select sort and filter, and then filter. You will see an arrow over there, and this arrow will be about a filter, and you can put any filter you want to with this arrow. Just click this arrow, and I want the top 3 numbers. So the number filter should be over there, and top ten option is over there. Just select that top 10. What I can do is I can select the top 3 items and click OK. Now you will see that the top 3 scores are represented over here like this. This is how I will be sorting out the first 3 marks over there. So I can remove the filter if I want to. But first, I think we have to take the screenshot. Okay, take the screenshot and place in the next place. So in the next page. So just what I can do is click on the stemming tool and then new. There's a screenshot. Copy, and in the Word file, I have to paste it like this. Okay, here's my screenshot. It's a bit of less size. This much is okay. And put a border over there so that it will be distinguished among the other screenshots. Okay. Now what I'm going to do is I'm going to perform the next step. The next step is all about make a copy of the screen of the sheet term one result and rename it as prelim results. So term one results का हमें क्या करना है, हमें कॉपी बनानी है और हमें prelim results के नाम से उसको रीनेम करना है. तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं यहाँ पर जाऊंगा और राइट क्लिक करूंगा उसको. राइट क्लिक करने के बाद कॉपी और मूव का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर. क्लिक कर दूंगा और क्लिक करने के बाद क्रिएट अ कॉपी के ऊपर टिक मार्क कर दूंगा. मूव टू द एंड पे कह दूंगा कि मुझे एंड पे चाहिए ये, और फिर ओके कर दूंगा. ये बिल्कुल एंड पे मेरे पास यहाँ पर टर्म वन रिजल्ट 2 के नाम से ये आ रहा है, जो कि कॉपी बन चुकी है. मुझे कहा गया कि मैं इसको रीनेम कर दूं प्रीलियम रिजल्ट के नाम से. जिस नाम से मुझे रीनेम करने को कहा गया है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इसी नाम को, और इसी नाम से मैं इसको रीनेम कर दूंगा. तो देयर यू गो. in there it is. Rename and paste. ओके. तो अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से भी और यहाँ से भी अपना फिल्टर रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे इस फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी. अच्छा जनाब, लेट फिल्टर. ओके. सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे इस सब्जेक्ट की जो ना, वो जाहिर सी बात है, बात देखिए, एंट्री करने वाला बंदा केमिस्ट्री को CH EM भी लिख सकता है सिर्फ, मैथ को मैथमेटिक्स भी लिख सकता है पूरा पूरा, कंप्यूटर को कंप्यूटर भी लिख सकता है, कंप्यूटर साइंस भी लिख सकता है, CS भी लिख सकता है, इंग्लिश को सिर्फ ENG भी लिख सकता है. तो मतलब इशू ये है कि मल्टीपल एंट्रीज हो सकती हैं, जो कि मैं नहीं चाह रहा. मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल एक तरह की एंट्री हो. तो कहा गया कि एक लिस्ट क्रिएट कर देंगे हम लोग,
लिस्ट में कहाँ क्रिएट कर सकता हूँ, कहा जा रहा है कि क्रिएट अ लिस्ट टू एंटर द सब्जेक्ट नेम्स यूजिंग द डेटा वैलिडेशन एट्रीब्यूट्स। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक लिस्ट क्रिएट करूंगा, इसे कहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट, जो कि मैंने पहले भी कहना चाहिए एक टर्म वन के अंदर एंट्री एंट्री की भी थी। तो मैं इसी की कॉपी बना रहा हूँ ताकि मेरे लिए आसानी रहे। मूव अ कॉपी, मूव टू द एंड, क्रिएट अ कॉपी। ओके। तो मैं यहाँ पर लिस्ट बना रहा हूँ सब्जेक्ट की। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ सब्जेक्ट लिस्ट के नाम से। इसके अंदर क्या है, सिर्फ मुझे जो है ना वो ये चीज चाहिए कि मैं इनको हटा दूं क्योंकि ये मेरे लिए एक्स्ट्रा है। इंटायर कॉलम हटा दूं यहाँ से। ठीक है, ये भी हट हट जाए तो बेहतर है। इंटायर कॉलम। ठीक है, और ये भी हमारे लिए बेकार है, इसलिए बैक स्पेस कर दूंगा उसको, डिलीट कर दूंगा उसको। तो मेरे पास ये सब्जेक्ट्स मुझे चाहिए। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स हैं, ये लिस्ट है मेरे पास। मैं क्या करूंगा, मैं इनकी जो है ना वो एंट्री बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाता है डेटा वैलिडेशन का मामला, जो हमें पास आगे कहा गया कि हमें डेटा वैलिडेशन के रूल्स अप्लाई करने हैं पिलियन वाली शीट के ऊपर। तो क्रिएट अ लिस्ट टू एंटर द सब्जेक्ट नेम्स यूजिंग द डेटा वैलिडेशन एट्रीब्यूट्स। किस तरह से करने हैं हमें, दिखा देता हूँ मैं आपको। अभी पीडीएफ वाली शीट आ गई मेरे पास। पीडीएफ वाली शीट के ऊपर मैं चाहूंगा कि इस वाली जगह पे मैं जो हूँ वो शीट सेलेक्ट कर लूँ जहाँ से मुझे एंट्री करनी है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो सिलेक्शन करूंगा, बल्कि मैं इसको हटा देता हूँ पहले तो, और आपको इस तरह से दिखाता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक मैंने सिलेक्शन कर ली। फिर मैं क्या करूँगा, डेटा पे जाऊंगा। डेटा पे जाने के बाद यहाँ पर डेटा वैलिडेशन के नाम से आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर डेटा के टाइप में डेटा वैलिडेशन के अंदर जाऊंगा। एनी वैल्यू नहीं, मुझे एक लिस्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक लिस्ट सेलेक्ट कर दूंगा, और मुझे सोर्स चाहिए कि कहाँ से मुझे लिस्ट उठानी है। तो सब्जेक्ट लिस्ट मेरी यहाँ से उठेगी इस वाली शीट से। मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लूंगा कि मेरी यहाँ से यहाँ तक की लिस्ट है। ठीक है, ये सेलेक्ट हो चुकी है। और मैंने क्या कर दिया, उसके बाद मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद क्या करूंगा मेरे पास यहाँ पर मुझे दिख रहा है, मैं जहाँ भी क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे सिलेक्शन के ऊपर साइड में एक एरो आ रहा है। फायदा क्या हुआ, जैसे मैं क्लिक करूंगा एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। मैं इन्हीं में से अब सेलेक्ट कर सकता हूँ, केमिस्ट्री के मार्क्स भी और दीगर सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी, यानी कि इंग्लिश हो गया, सीएस हो गया, व्हाट्सएप। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना इस तरह से पूरी लिस्ट आ सकती है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस ड्रॉप डाउन का जो है ना बेसिकली स्क्रीनशॉट चाहिए। तो ऐसे तो नहीं आने वाला स्क्रीनशॉट, मैं प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाऊंगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, उर्दू पे रख देते हैं, और फिर मैं प्रिंट स्क्रीन का बटन दबा देता हूँ। यहाँ पर ड्रॉप डाउन की लिस्ट आ गई मेरी। ठीक है, उर्दू, इस्लामियात, मैथ, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पीएचडी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना मैं स्क्रीनशॉट ले चुका हूँ, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मुझे चाहिए कि मैं क्रिएट अ स्क्रीनशॉट डिस्प्लेइंग द सॉरी टेक अ स्क्रीनशॉट डिस्प्लेइंग द ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड इट टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसका स्क्रीनशॉट लूंगा, यानी कि मैं स्क्रीनशॉट ले चुका हूँ। अब मैं इस वर्ड फाइल के अंदर पेस्ट कर दूंगा, एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डू इट। ठीक है, आई कैन क्रॉप इट नाउ, क्योंकि मुझे जाहिर सी बात है इजाफी चीज तो नहीं चाहिए। तो फॉर्मेट, क्रॉप, मैं चाहूँ तो एक काम पेंट से भी कर सकता था। इट्स अप टू यू अगेन। मुझे बस यहाँ तक का डेटा चाहिए, तो ओके, देयर आई गो। सो यहाँ तक मैं इसको बॉर्डर दे सकता हूँ अगेन, ताकि बाकी से थोड़ा डिस्टिंग्विश हो जाए कि अलग स्क्रीनशॉट है। डिस्टिंग्विश करने के बाद क्या है, अब हम क्या करेंगे, हम लोग जो है वो इसके अंदर नया स्टेप फॉलो करेंगे। हम कह रहे हैं कि भाई यूज द डेटा वैलिडेशन एट्रीब्यूट टू मेक श्योर द एंटर मार्क्स आर बिटवीन 0 to 100। मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे जो मार्क्स एंटर हों वो नंबर ही हों, और नंबर के साथ साथ वो 0 से 100 के बीच में ही हो, हर सब्जेक्ट के लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं फील्डिंग की शीट में जाऊंगा अगेन, और ये मेरी फील्डिंग की शीट थी। इससे मैं क्या करूंगा, मार्क्स को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना है, और मुझे डेटा वैलिडेशन के रूल्स अप्लाई करने हैं। अगेन मैं डेटा में जाऊंगा, डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन को क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं एनी वैल्यू को अलाउ नहीं कर रहा। मेरे मार्क्स किस में होते हैं, मेरे मार्क्स डेसिमल में तो अलाउड नहीं होते, तो मैं जैसी बात है डेसिमल में नहीं जाऊंगा। मैं किस में जाऊंगा, मैं होल नंबर में जाऊंगा। मेरे होल नंबर ही आखान बोर्ड में अलाउड होते हैं मुझे। तो होल नंबर पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद क्या कह रहे हैं ये लोग, ये कह रहे हैं कि बिटवीन, बिटवीन यानी कहाँ से कहाँ तक। मिनिमम वैल्यू क्या एंटर हो सकती है मेरे पास, 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या एंटर हो सकती है मेरे पास, 100।
जीरो से 100 के बीच में मैं वैल्यूज अलाउड कर रहा हूँ यहाँ पर, उसके अलावा मैं अलाउ नहीं कर रहा। फिर कह रहे हैं कि यहाँ पर कहा ही जा रहा है कि आई ऑल्सो हैव टू क्रिएट एन एरर अलर्ट टू नोटिफाई द मार्क्स आर आउट ऑफ रेंज। तो मुझे एरर अलर्ट जो है ना, मुझे यहाँ पर देना है, और मार्क्स आर आउट ऑफ रेंज मेरा मैसेज ये डिस्प्ले हो रहा हो। तो कॉपी करूंगा और एरर अलर्ट पे जाऊंगा, मेरा मैसेज यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, और मैं कहूंगा ये एरर अलर्ट है। ठीक है, एरर अलर्ट का मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जैसे मैं ओके करूंगा, अब आप ये देखिएगा कि जैसे मैं 100 से बड़ी वैल्यू डालता हूँ, चाहे वो 101 ही क्यों ना हो, एक एरर अलर्ट आने वाला है जैसे मैं एंटर हिट करूंगा। क्या लिखा हुआ है? एरर अलर्ट, मार्क्स आर आउट ऑफ रेंज। ये मैंने खुद बनाया है। ठीक है, रिट्राई करके मैं कुछ छोटी वैल्यू डाल देता हूँ। मैं 100 डाल दूंगा तो दैट्स व्हाट एक्सेप्ट कर लेगा, मैं 0 डाल दूंगा तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन कुछ भी मैं नेगेटिव में डालूंगा मिसाल के तौर पे, तो ये एक्सेप्ट नहीं करने वाला। तो ये दिस इज हाउ यू विल डू योर प्रैक्टिकल नंबर 26। एरर अलर्ट की भी हमें स्क्रीनशॉट चाहिए, तो जाहिर सी बात है मैं एक दफ़ा गलती करके दिखाऊंगा। लेट्स सपोज -12 एंड यहाँ पर ये आ गया एरर अलर्ट। मैं क्या कर सकता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ और फिर अगले पेज पे डाल सकता हूँ। तो टोटल मेरे पास 3 स्क्रीनशॉट्स होंगे, जो कि मेरी फाइल में ऐड हो रहे होंगे, जैसे कि मैंने आपको ऐड करके दिखाया इस तरह से। ठीक है, ये हमारा लास्ट स्क्रीनशॉट होगा, और लास्ट स्क्रीनशॉट यहाँ पर पेस्ट हो गया, और मेरे पास जो एक्स्ट्रा स्पेस है मैं जाहिर सी बात है उसको रिमूव करूंगा, बीइंग द गुड स्टूडेंट आई एम। सो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा सिलेक्शन करके डिलीट। ठीक है, मेरे पास सिर्फ 2 पेज रह गए जिसका मैं प्रिंट निकाल लूंगा। यहाँ पर अगेन आप चाहें तो बॉर्डर दे दें, जस्ट फॉर द प्रेजेंटेशन, नॉट फॉर द सेक ऑफ एनी लॉजिक। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, टू कंप्लीट योर प्रैक्टिकल बिफोर वेकेशन एंड।